Namaskar. I am so very grateful to the MGM for this very prestigious invitation, especially Namrata ji, her organization. वैसे मैं ये समझा था कि नम्रता जी मेरी मित्र हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और निकला। उन्होंने मुझे डोना डोंगा जी के बाद बोलने के लिए खड़ा कर दिया है। ये परीक्षा की घड़ी है। मित्र ऐसा नहीं किया करते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। I took two messages from what Dunga ji mentioned. The soul is dead. We talk about the past, we talk about what should happen in the future, and we always feel, or most of the times feel, present में कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, काश ऐसा होता। I am a person of the present. Last 8-9 years, I have lived the National Education Policy 2020. Right when it was being thought that we should have a new policy on education, as things were not right, the nation has not progressed the way it should have. I was fortunate to be appointed the chairperson of the National Institute of Open Schooling, and right from the beginning I was involved. And that is why you hear in my CV that I have been on various committees, national committees of the Government of India. So I will largely talk about the now and what's happening. And I would expect the questions on the national education policy based on what I share with you. कई बार लोग समझ नहीं रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। मैं अक्सर ये कहता हूं, ये एक दर्शन है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये दर्शन है। 142 करोड़ लोगों को या 142 करोड़ लोग के देश को बदलने का एक प्रयास है। और शायद आप में से जो लोग 2040 और उसके बाद के भारत को देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि क्या बदला। हम अक्सर एजुकेशन के डिबेट को अंग्रेजी वर्सेस ऑल कर देते हैं। ये मैकॉले का दिन है। हम सब मैकॉले को सुनते रहे, पढ़े कम लोग होते हैं। ओरिजिनल अगर आप पढ़ें तो मैकॉले ने क्या कहा था? We would teach European content in English language. For those who would study, English would be brown in color and white in thinking. They would be translators between us and the millions whom we govern. And the final statement of Macaulay was very, very important. They would help us prolong the British rule in India. The objective, the purpose of education then for Macaulay was, हमारा शासन इस देश में लंबे समय तक चलना चाहिए, और यही शिक्षा का उद्देश्य है। You must have heard many definitions of education from this stage since yesterday. What is your definition of education? What do you want from education? हम सब बड़ी चिंता करते हैं कि जो लोग बूढ़े हो रहे हैं उनके बच्चे उनका देखरेख नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं और वो हमको ओल्ड हाउस में भेज देते हैं। तो आपने ही तो श्रवण कुमार की कहानी को एनसीईआरटी की किताबों से निकाला है, तो अब क्यों रोकते हैं? 40-50 के दशक में कहानियों में था और वो चिंता थी आपके बच्चों की। आपने निकाल दिया। जब हम 2014-15 में सोचना शुरू किए कि बदलना क्या है, मैं इसके पहले की कहानी बताऊं। मैं कहानियां ज्यादा सुनाऊंगा क्योंकि ये सब एक्सपीरियंसेस है, इसलिए शायद आपको बियर भी करना पड़े और शायद इंटरेस्टिंग भी हो। मेरी थोड़ी ट्रेनिंग विदेश में हुई है, एक वहां बड़ा एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है
एक शैडो कैबिनेट होता है जो हमेशा सरकार पर दबाव बनाए रखता है कि आप क्या बदलिए, क्या करिए, और जब हमारी सरकार आएगी तो हम क्या चेंज करेंगे. And that shadow cabinet keeps telling the government that look, what you are doing is not right, or if we come to power, we'll do this. In 2012-13, we had established a shadow commission on national policy on education. Some of us, you may know some of these names: Professor J.S. Rajput, Professor Kapil Kapoor, the former chairman CBSE and Vice Chancellor NIPA, myself. We were all members of it, and we had started drafting a policy for education, which we wanted to tell the government, this should be the policy on education. Somehow the government changed, and 2014-15, the government invited, and we started working on it. कुछ चीजें जो पॉलिसी में है उसको मैं रेफर करूंगा. The policy says only 26% of the relevant age group is in higher education. We had handed over 100% children to the schools through the Sarv Shiksha Abhiyan. If you look at the data, 110% children are in school, or were in school since 2000. तो कहाँ गए ये बच्चे? So this report card of schooling would be 74%, 26%, 74% fail. हमने 100 बच्चे दिए, 26 को ही आप पास करा के हायर एजुकेशन में पहुंचा पाए, तो 74 बच्चे मेरे गए कहां? चिंता है क्या इसकी? I want to raise those concerns because I often say I entered this profession with certain concerns. और जैसा दुर्गा जी ने कहा कि हम सब उसी आशा के साथ इन प्रोफेशन में आते हैं कि कुछ ड्रीम है, कुछ बदलना है, कुछ चेंज देखना है. Now that I am almost ready to exit the system, I often like to address my colleagues, fellow teachers and hand over the baton. वो कंसर्न क्या था जो कंसर्न हम आपसे शेयर करना चाहें? हर बच्चा स्कूल में हो, हर बच्चा अपने मन के हिसाब से पढ़ाई कर सके. और जब मैं अपने मन के हिसाब से कह रहा हूं तो वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स नहीं होगा, वो डांस भी होगा, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है, वो ड्रेस डिजाइनिंग हो सकता है, वो डांस, ड्रामा, पेंटिंग हो सकता है. और ये सब था हमारे भारत की विरासत में है. ये खत्म कैसे हुआ? लेकिन हमने डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन को डिग्री बना दिया. मैं जितनी बातें कह रहा हूं, अगर आप पढ़ें डिबेट्स ऑन एजुकेशन, ये सब है. तो ये कंसर्न 1947 में हमारा भूल कैसे गया? याद करिए गांधी जी का वो स्पीच जो उन्होंने चैथम हाउस में 1931 में जब राउंड टेबल गए थे अटेंड करने, तो कहा था वी हैड 95% लिटरेसी, द British system of education destroyed, and now we are below 15% literacy. 1937, Gandhi comes up with the Vardha scheme. 1947, we forgot about it. हम उसको लागू क्यों नहीं किए? क्या कहा था गांधी? मैं उसकी कुछ चीजों की बात करूंगा. तो जब हम 2015-16 में बात करना शुरू किए, I remember there was a CAVE meeting, Central Advisory Board of Education meeting, and I was attending that meeting as a member. उसी दिन अखबार में आया 60 लाख बच्चे विद्यालयों के बाहर, 60 lakh children out of school, and we had a firebrand दुर्गा की रूप स्मृति ईरानी chairing that meeting. पूरे हाउस को वो ऑन होल्ड ले लिया. ये क्या खबर है, क्या किया है आप लोगों ने? एक सब कमिटी बनाई गई उपेंद्र कुशवाहा जी के अध्यक्षता में. मेरा सौभाग्य था कि मैं उसका मेंबर बना. हम देश भर में घूमे और पूछा लोगों से, बच्चों से कि भाई क्यों छोड़ दिया स्कूल? कपड़ा फ्री, किताबें फ्री, जूते फ्री, खाना फ्री, फिर भी स्कूल क्यों छोड़ दिया? और सबों ने ये कहा कुछ समझ नहीं आता था, कुछ समझ नहीं आता था. इमेजिन कीजिए एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर स्कूल जाता है और उसके माँ बाप उसको पहुंचाते हैं और आशा से पहुंचाते हैं कि आज शाम को लौटेगी बच्ची तो कुछ सीख जाएगी. हर दिन पूछते हैं क्या सीखा,
और वो बच्ची कहती है समझ नहीं आया। आई वुड री एम्फेसाइज, खाना फ्री, कपड़ा फ्री, जूता फ्री, और शाम में लौट के कहती है कि कुछ सीखा नहीं। माँ बाप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो। क्यों? सब फ्री के बाद भी क्यों छोड़ दो? अच्छा खाना फ्री मिल रहा है, अगर वो बहुत गरीब है, बहुत बैकवर्ड है, तो कम से कम जाती रहो, खाना तो फ्री मिल रहा है, कपड़ा तो फ्री मिल रहा है। नहीं, हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि एक लड़की जब 6 साल की स्कूल में आती है तो हर दिन फैमिली का लॉस 150 से 300 रुपए का है, क्योंकि अगर उसकी मां काम करने जाए तो ये बच्ची अपने छोटे भाई बहन की देखरेख करती है। लेकिन हमने ये सोच लिया कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं। वो फैमिली कितना बड़ा सेक्रीफाइस करती है इस लड़की के लिए। एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट है, पीपल्स रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन। एक्चुअली हम लोगों को ये पीपल्स कमीशन ऑन एजुकेशन बनाने का आइडिया ब्रिटेन से और ये प्रोब रिपोर्ट से ही आया था कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए। तो माँ बाप कहते हैं कि तुम कुछ सीख नहीं पाओगी, तुम घर ही रहो, कम से कम बच्ची का तो, छोटी बहन का तो देख रेख करोगी। प्रोब रिपोर्ट में बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया गया है। ये रिसर्चर्स गए पूछने के लिए, देखा राजस्थान में एक पत्थर तोड़ने वाली थी, her little daughter was there. They asked, why is she not in school? So she said exactly the same. There is no good. She doesn't learn anything. They said, why? Because they don't teach. What should be done to ensure that you send her to school? She said, look, बाबू, हम एक शाम का खाना काट के, पेट काट के भी बच्ची को स्कूल भेजेंगे। And then what she said is very important. क्या मेरी बच्ची को वही शिक्षा मिलेगी जो तुम्हारे बच्चे को मिलती है? Poor people understand the relevance of quality education, but we have not ensured that. So what was wrong? We have debated the issue of language in education for all these decades, understanding what should be done, but we never did it. Read the 1854 Woods Dispatch. It had recommended हर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देना पड़ेगा भारत में, नहीं तो ये बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, अंग्रेजी में शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये अंग्रेजों को समझ में आ रहा था। पूरे कांग्रेस का लड़ाई अंग्रेजी सरकार से इसी पर हुई कि मातृभाषा में शिक्षा दो, और 47 के बाद हम भूल गए। जब पहला कमीशन बैठता है वो राधा कृष्णन कमीशन, हायर एजुकेशन पर, प्राइमरी पर नहीं। I said I am a person of the present. I am emotional about change. I am emotional about this country. I ask these questions on every platform and I expect answers. 47 के बाद क्यों बोलते? हर बार कहा गया कि मातृभाषा में शिक्षा दो। हम बिहार से आते हैं, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। आमतौर पर यह माना जाएगा कि मैं बिहारी हूं तो मेरी मातृभाषा हिंदी होगी। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा मगही है। 90% बच्चे 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है वो नहीं बोलते हैं, लेकिन हम उन्हीं 22 भाषाओं में शिक्षा देते हैं। क्या हाल होगा? हम कई बार एजुकेशन में कहते हैं जिस बच्चे का पहले दिन स्कूल जाना हुआ या एडमिशन हुआ उसी दिन तय हो गया ये बच्चा कहां पहुंचेगा। द डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड इज फिक्स्ड द डे ही और शी इज एडमिटेड टू स्कूल एंड द क्वालिटी ऑफ स्कूल। So once you have decided a child to go to a Hindi medium school whose language is not Hindi, even though he or she may be from Bihar, UP, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, you have decided the future. The child is not getting level playing field. We have written about it. एंकर साहब बैठे हैं, ये मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। गांधी ने भी यही कहा था, मातृभाषा में शिक्षा दो, उनकी भाषा में शिक्षा दो। ये हुआ क्यों नहीं? When we did that survey through that commission, subcommittee of the cave, और हम लोगों को यही लगा कि भाई मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए। ये बात पहले भी हुई थी, तो हम लोगों ने पहला रिकमेंडेशन और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया है वो कि मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। इस पर काम शुरू किया गया था, हो नहीं पाया। अब पॉलिसी आने के बाद हुई है। आई विल क्विकली जस्ट मेंशन
We have already released the textbooks in 25 languages, जिसको कि अब NCERT करेगा। लेकिन पढ़ना क्या है, सीखना क्या है? I'm trying to share some of the concerns that we had and why we wrote this NEP 2020. I've been a part of it. कि वो है क्या, नहीं समझ पा रहे हैं हम। Implementation definitely एक issue है, लेकिन वो issues क्या है? I hope लैंग्वेज इशू को आप समझ रहे हैं कि बच्चे को अर्ली ईयर्स में केवल मातृभाषा में बात करने दीजिए, सीखने दीजिए। मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 3 से 8 साल के बच्चे को सीखना भी क्या है। जो फिटनेस मॉडल है उसको जरा भारत में आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में। 6 साल से हम स्कूलिंग शुरू करते हैं। 3 से 6 साल सबसे प्रोडक्टिव ईयर है। बच्चा रहता कहां और सीखता कहां है। Children of 3rd, 4th generation educated parents obviously are in a play school or a creche or a daycare center. They are learning there. What do children in the villages do? गांव का बच्चा क्या कर रहा होता है 3 से 6 साल में? और वो 70% है। 70% बच्चे गांव में रहते हैं जिनके पास ये प्ले स्कूल्स नहीं है। तो वो 3 से 6 साल, मैं कई बार ये कहता हूं, मैंने भी ऐसा किया है, वो साइकिल का पुराना टायर वो एक डंडे से दौड़ाते थे और दौड़ा दौड़ा के वही मेरा खेल हुआ करता था। होता था ना, अभी भी होता है। वो क्या सीख रहा है बच्चा उससे? सीखने के लिए उसको टॉयज जो हम प्ले स्कूल में देते हैं वो अवेलेबल क्यों नहीं करा सके? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के तहत देश में 13,000 आंगनवाड़ी खुले हैं। आई एम ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी डिड, व्हाट हैज बीन सेड इन द पॉलिसी एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट द चेंज इन फ्यूचर। होप यू विल बी एबल टू कनेक्ट एंड रिलेट इट विद इट। ICDS का डॉक्यूमेंट पढ़िए, क्या कहता है। हम सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगे, आंगनवाड़ी होगा। जब माताएं काम करने जाए तो बच्चे को वहां छोड़ के जा सकती हैं। वहां एक वर्कर होगा जो इन बच्चों को देखरेख करेगा। अमीर के बच्चे के लिए प्ले स्कूल और गरीब के बच्चे के लिए वर्कर। वन मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। ये वर्कर पेडागोजी समझता नहीं है, लर्निंग समझता नहीं है, चाइल्ड डेवलपमेंट समझता नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं समझता है बच्चे का, कि 4 साल का बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। उसको पेंसिल थमाए या ना थमाए, उसको डांट लगाए या ना लगाए, उसको छड़ी से पिटाई करें कि ना करें। जब बच्चा नई बात सुनता है, छड़ी लगाती है और फॉर ऑल टाइम्स टू कम लर्निंग उसका रुक जाता है। The second important recommendation that we have made is we will convert all Anganwadis into play schools and all these Anganwadi workers would be retrained. कई बार लोगों ने हमसे ये कहा है क्या इनका नौकरी चली जाएगी जो अभी हैं? बिल्कुल नहीं जाएगी, उनको हम रिट्रेन कर रहे हैं। हम लोगों ने एक उसका करिकुलम बनाया है जो अभी गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है। होपफुली we'll train all the Anganwadi workers. We have collected all those who are involved, psychologists, yogis, and we have designed, hopefully the government. I'm part of the government but not part of the government, so I will ये बना के दिया है। वैसे गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट्स होती है तो वो होगा। अब ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिनको कि हम पेडागॉग बनाएंगे, टीचर्स बनाएंगे, ये समझेंगे कि ये बच्चा क्या है। हमारे पास उदाहरण है इसका कि टैलेंट सब जगह एक है। आपने नवोदय विद्यालय खोला था, देखिए नवोदय विद्यालय का क्या परफॉर्मेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नवोदय विद्यालय, कि गांव के टैलेंट को खोज करके 6ठी क्लास में लाओ और उसको फुल गवर्नमेंट सपोर्ट से पढ़ाओ। आज 10% IAS में जो आ रहे हैं वो नवोदय विद्यालय से आ रहे हैं। इमेजिन क्या टैलेंट आपके गांव में। हम लोगों ने वही यहां सीखा और कहा कि गांव के आंगनवाड़ी को ट्रांसफॉर्म करो, इनको वहां लाओ, इनको वहां खेलने दो। खेलने में क्या है? आपको अंदाज है कितने का खिलौना आप हर साल चाइना से इंपोर्ट करते हैं? How much money do you give to China every year for toys? Billions and billions of dollars. और आपके देश का एक बिग कल्चर ऑफ टॉयज है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेन में ट्रैवल करिए, सेकंड क्लास के डब्बे में, हर दूसरे स्टेशन पर आपको लोकल टॉयज बेचता मिलेगा। उन टॉयज को जरा खरीद लीजिए।
क्या उसमें साइंस है, क्या लर्निंग है? हम ये क्यों नहीं बच्चों को दे सकते? क्योंकि चाइना का खिलौना बहुत सस्ते में मिल रहा है। ये जो लोकल आर्टिशियन बना रहा है, ऑब्वियसली उसका दाम थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें समय भी लगता है, मटीरियल भी लगता है। So we said, look, let us have a collection of all the toys of India, grade them. Which toys are relevant for 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old, supply it to all the Anganwadis, let the children play with these toys. I must share with you, we had already have 3 toyathons of the nation. हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी गई कि अपने डिस्ट्रिक्ट के खिलौने आप जमा करके भेजिए। एनसीईआरटी ने इन खिलौनों को स्टडी करना शुरू किया है और उसके आधार पर, एंकर साहब बता रहे थे, पिटारा इन लोग बनाए हैं इनके स्कूल में, इसका नाम जादुई पिटारा दिया गया है। 52 गेम्स इसमें हैं जादुई पिटारे में, जो भारतीय कल्चर पर बेस्ड है। ये इन स्कूल्स को दिया जा रहा है कि ये बच्चे इन खिलौनों से खेलेंगे। इन खिलौनों की भाषा कौन सी भाषा है? उनका लोकल लैंग्वेज है। भारत जीता है इन खिलौनों के थ्रू, और यही खिलौने ये बच्चे खेलेंगे, उसी में क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्या होगा ये 3 से 8, तभी आप पाते हैं कि हम लोगों ने अब जो पहले 10+2, कल भी इसका मेंशन हुआ था, 10+2 स्कीम था, उसको 5+3+3+4 कहा है। जो 5 इयर्स है वो है मदर टंग में एजुकेशन। डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट कि मगही में आप पीएचडी करेंगे, अगर मगही डेवलप कर जाए तो करेंगे कभी, लेकिन फिलहाल जो हमने कहा है पॉलिसी में कि मगही में 3 से 8 साल का बच्चा खेलेगा, क्या करेगा? स्कूल आएगा जो वेल इक्विप्ड होगा, वहां ये खिलौने होंगे, उससे खेलेगा और अपनी भाषा में क्वेश्चन पूछेगा। हमारा कल्चर रहा है क्वेश्चन पूछने का। प्रश्नोपनिषद पढ़िए, ये हमने खत्म कब किया? जब हमने वेस्टर्न मॉडल अडॉप्ट किया। हम तो डायलॉग से सीखते ही थे। गांधी के हिंद स्वराज को पढ़िए, उसमें भी उन्होंने उसी को अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन पूछो आंसर देंगे, क्वेश्चन पूछो आंसर देंगे। हम लोगों ने ये कहा है इन खिलौनों से बच्चे खेलेंगे, अपनी भाषा में क्वेश्चन पूछेंगे। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं, वो लकड़े का घोड़ा है ना, वो सब आप देखें जरा, उसका वो किस साइंस के थ्योरी पर काम करता है बता दीजिए। अब सब बड़े पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी भी है भाई। तो बच्चा के पूछ रहा कि दीदी इस पर बैठता हूं, आप हिला देती हैं तो ये चलता रहता है, लेकिन कुर्सी नहीं हिलती है, ये क्यों हिलता रहता है? तुम समझाइए। ऐसे ही तमाम खिलौने होंगे जिससे खेलेगा और दीदी उसके समझाएगी। मैं दीदी क्यों कह रहा हूं? गांधी ने कहा था 1937 में, I can relate everything, every recommendation of NEP from where we have picked up those ideas. गांधी ने 1937 में कहा था लोकल लड़की को अपॉइंट करो टीचर, लड़की। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों। क्योंकि वो लोकल है, उसकी भाषा बोलती है, और उसको ट्रेन कर दो कि ये 3 से 8 साल का बच्चा क्या क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, कैसे समझाना है, उसको उस पर ट्रेन कर दो। इसीलिए हमने टीचर ट्रेनिंग को 4 भाग में बांट दिया है। 4 साल का ट्रेनिंग होगा केवल 3 से 8 साल के बच्चों को पढ़ाने का। अभी तक भारत में आप बीएड छोड़ के दूसरी डिग्री नहीं दिए थे, और बीएड आपके 14 to 18 एडोलेसेंट को पढ़ाने के लिए केवल है। ये टीचर अपॉइंट हो, ट्रेन होके बीएड जाता है और 3 साल के बच्चे को पढ़ाना शुरू करता है। कुछ समझ ही नहीं आता है बच्चा क्या है, क्योंकि वो एडोलेसेंट जैसा ट्रीट करता है इसको। तो हम लोगों ने कहा है इसको, इसके रेलेवेंट एज ग्रुप के लिए ट्रेनिंग होगा और 4 साल की ट्रेनिंग होगी, और ये लोकल होगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। विमेन की बड़ी बात हो रही है, मैं 2 एग्जाम्पल बहुत क्विकली दूंगा। देश में 62 स्कूल बोर्ड्स है। हर एक स्कूल बोर्ड का जब रिजल्ट आता है, ध्यान से देखिए, एवरी स्कूल बोर्ड एवरी ईयर गर्ल्स आउट परफॉर्म बॉयज। वेयर डू दीज गर्ल्स गेट लॉस्ट? They are in 80% of the teaching workforce is of women. इनका फर्स्ट एप्टीट्यूड है फॉर टीचिंग, लेकिन सर्विस कंडीशन जाके पढ़िए क्या है।
हम लोगों ने 3 चीज रिकमेंडेशन दिए। 12वीं क्लास के बाद एक नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट करो फॉर बिकमिंग टीचर। हम कोई रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तुमने जी बहुत बढ़िया कहा था कि मैं प्राइमरली अगेंस्ट इट। आप जिसमें क्षमता है वही सेलेक्ट करिए, वही काम करने दीजिए, वो करेगा। केवल गवर्नमेंट सपोर्ट करिए। सर हिला रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने क्या रिकमेंडेशन दिया है? दैट इज व्हाट आई सेड। We talk of the past, we talk of the future, I am talking of the present, what we have done. I hope you will appreciate it. Sir, 12th के बाद नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। हमारा ये सोचना है कि जैसे 12वीं के एग्जाम में लड़कियां लड़कों को परफॉर्म करती हैं, इसमें भी करेंगी। हम लोग जब एक दूसरा कमीशन था, सिद्दीकी कमेटी, हम लोग रिव्यू कर रहे थे टीचर एजुकेशन को, मैं भी उसका मेंबर था। पुणे में लड़कियों से मिले थे, कई जगह मिले। पुणे की लड़की ने जो कहा था वो हम लोगों को पकड़ लिया। उसने कहा कि सर अगर आप लोग 2 साल के बीएड को 4 साल किए तो कोई भी लड़की नहीं कर पाएगी, क्योंकि माता पिता ये कहते हैं कि 1 साल का बीएड था तो 40-50 हजार फीस था, वो खर्च कर देते थे तो डाउरी कम लगता था। ये दोनों लड़कियां मुसलमान थी बाय द वे। अगर आप 2 से 4 साल किए तो हम लोगों को तो कोई नहीं पढ़ाएंगे। हमारे सामने बड़ा प्रश्न था, हम लोग इस पर डिबेट किए, डिस्कस किए, तो हुआ कि भाई ये तो प्रैग्मेटिक रिकमेंडेशन नहीं होगा। फिर कंसेंसस ये बना कि सरकार ने हमको कहा है कि अच्छा टीचर एजुकेशन कैसे हो ये बताओ, ये थोड़ी कहा कि प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन बताओ। हम लोग तो 4 साल ही रिकमेंड करेंगे। लेकिन 2-3 चीज हम लोगों ने उसके साथ राइटर लगाया। 12th के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, दोज हु गेट सेलेक्टेड विल बी ट्रेन्ड एट गवर्नमेंट कॉस्ट। सरकार खर्च उठाएगी, क्योंकि हर जगह यही प्रश्न कर रहे थे कि हम 4 साल का ट्रेनिंग लेकर के क्या इंजीनियर जितनी सैलरी पाएंगे? इंजीनियरिंग 4 साल का है तो हमको मिलेगा। हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है 4 ईयर ट्रेनिंग एट गवर्नमेंट कॉस्ट। क्यों? एवरी ईयर ऑन एन एवरेज वी रिक्वायर अबाउट 3.5 लाख टीचर्स, फ्रेश टीचर्स, बिकॉज 3.5 लाख टीचर्स रिटायर एवरी ईयर। 3.5 लाख टीचर्स को क्या सरकार अपने खर्च पर ट्रेनिंग नहीं करा सकती है? और अगर नहीं करा सकती है तो भूल जाइए देश को बदलने की बात। हम लोगों ने रिकमेंड किया कि जितने टीचर की आवश्यकता 4 साल बाद होगी उतने टीचर्स को गवर्नमेंट कॉस्ट पर ट्रेनिंग दिया जाए। और ये काम कर चुकी है एनसीटी, वो प्रोजेक्शन स्टडी कर चुकी है कि क्या रिक्वायरमेंट है टीचर्स का, कितने को ट्रेन किया जाए, कितने को रीट्रेन किया जाए। एंड ट्रेन होने के बाद ये लड़कियां अपने ही गांव में प्लेस होंगी। क्यों? हमारे पास डेटा था, large majority of women resigned from their services because they were transferred far off from their place, either husband's place or their मायका। क्या जरूरत है टीचर के ट्रांसफर की? वो कौन सा करप्शन करेगा? हमारा आर्गुमेंट ये है कि एक ही जगह अगर कोई रह जाएगा तो वहां क्लिक बना लेगा, वहां नेक्सस बना लेगा और फिर करप्शन करेगा। टीचर ऐसा कौन सा करप्शन करेगा? ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम अपने लाइफ टाइम में 3 जनरेशन को पढ़ाते हैं। शायद दुर्गा जी ने 4-5 जनरेशन को पढ़ाया होगा। इनके स्टूडेंट्स के ग्रैंडफादर्स आकर के शायद इनका पांव छूते होंगे। तो हम कौन सा ऐसा करप्शन कर लेंगे? इन ऑन द कॉन्ट्रेरी, उस जो मेरा स्टूडेंट होगा वो बदतमीजी करेगा, कहेंगे जाओ पापा को बुला कर लो। उसके पिताजी का जब कान पकड़ेंगे तो बच्चा देखेगा ये क्या हुआ। और अभी हमारे सामने एजुकेशन में सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है टीचर एब्सेंटिज्म का। जब ये लड़की उसी गांव की होगी और पढ़ाने नहीं जाएगी तो नेक्स्ट डे बच्चे आएंगे कि मौसी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, तुम आई नहीं स्कूल। ये टीचर एब्सेंटिज्म क्यों होगा? वही, और यही परंपरा थी हमारे देश की। लोकल टीचर कनेक्ट करता था, जो रिटायर्ड नानी दादी होती थी वो मंदिर के बरामदे में बैठ के बच्चों को पढ़ा देती थी। ना कोई फीस, ना कोई ड्रेस, ना कोई खर्चा, ना कोई टैक्स, कोई सेस नहीं लगता था एजुकेशन पर। वो सेस का पैसा कहां जा रहा है पता नहीं। सीएजी का रिपोर्ट पढ़िए, करोड़ों करोड़ सेस का पैसा पड़ा हुआ है, खर्च नहीं हो पा रहा है, और हम कहते हैं कि स्कूलों की स्थिति खराब है। हमारे पास धन की कमी है, ऐसी बात नहीं है। आई होप यू कैन लुक एंड सी दैट चेंज कि अगर हम सभी बच्चों को स्कूल में लाए, लोकल लड़की कोई ट्रेंड है,
जो एप्टीट्यूड से है, मेरिट पर है और वहीं पढ़ाती है और एब्सेंटिज्म नहीं है, एक कम्युनिटी बना है, तो पढ़ाई कैसी होगी? और रेलेवेंट पढ़ाई है। ये पढ़ाई नहीं है खेल खेल में। हमारा मेजर प्रॉब्लम था ड्रॉप आउट और पुश्ड आउट। I hope we would be able to handle that dropout of students because of the language issue, because of misunderstanding between the teacher, the system and the child. We'll be able to handle that. If 100% of your children remain in the school, जो स्कूलिंग का प्रोसेस कहते हैं, लर्निंग नहीं है, ये फाउंडेशन जो हमने अब इसमें स्कूलिंग में लाया है, इसीलिए हमने कहा है कि ये स्कूल का पार्ट होगा लेकिन अलग होगा। तो इंडिपेंडेंट हो सकता है, आप बना सकते हैं, कम्युनिटी बना सकती है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, कोई भी कर सकता है, केवल हम गाइडलाइंस देंगे और उसके बेसिस पर चलेगा। 2040 we have said we would do it by 2030. 10 years we'll watch the change and 2040 we'll have another commission to re-examine कि हमने क्या चेंज किया, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे। आप फाउंडेशन को देख सकते हैं कि आपका 100% बच्चा जो आया वो रहा, खेला, अपनी भाषा में बात करके बड़ा हुआ। जब वो कक्षा 3 में आता है तो वो कहेगा कि भाई हम अंग्रेजी में तो नहीं बता पाएंगे आपके प्रश्न का उत्तर, लेकिन आप पूछिए हमसे, मेरी भाषा में मैं आपको समझा पाऊंगा। पूरे देश का हर बच्चा किसी ना किसी भाषा में समझा रहा है, अपनी बात कह रहा है, वो कॉन्फिडेंस है। हमको एजुकेशन देता क्या है? यही कॉन्फिडेंस तो देता है। तो जब ये बच्चा कॉन्फिडेंट चाइल्ड क्लास 3 में आएगा तब वो सेकेंड लैंग्वेज लेगा जो मेजर लैंग्वेज ऑफ द रीजन होगा। महाराष्ट्र में ये मराठी हो सकता है, बिहार में ये हिंदी हो सकती है, कर्नाटक में कन्नड़ हो सकता है, बंगाल में बंगाली हो सकता है। तो अब वो बंगाली में, मराठी में पढ़ना शुरू करेगा, थर्ड लैंग्वेज हो जाके बाद मिलेगा। जो मेजर दूसरा चेंज हमने लाया है वो ये है कि अब किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। आई हैव shared with you about that story of that girl who wanted to be a dancer yesterday. What we realized is we have not given those options to the children to study various subjects. What did Mandel study? He studied 3 subjects: gardening, agriculture and mathematics. Can any child of India study with these 3 combinations? लेकिन मैंडल ने जो सिद्धांत दिया वो इसी के कारण, क्योंकि वो गार्डनिंग और मैथमेटिक्स साथ कर रहा था। हम अपने बच्चों को ये मौका नहीं देते हैं। बच्चा कहता है कि मैं डांस और मैथमेटिक्स करूंगा, आप कहते हैं ना। I often share this, but Professor Devraj may not like it. Professor Devraj was the vice chairman at UGC, and I had the privilege of being the chairman of NIOS. I wonder how many of you know that you have NCERT, which designs subjects, curriculum, textbooks, CBSE, which recognizes the schools and the schools impart those textbooks, and CBSE assesses. NIOS combines all the 3. NIOS has the authority to decide on new subjects, develop textbooks, impart these courses, assess and certify. हमने ये NIOS में तय किया था जब हम चेयरमैन थे कि किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है। हम अपने एकेडमिक काउंसिल में ले गए और पास कराया और शुरू कर दिया। Once I was in the meeting at the ministry and Mr. Devraj was there and Mrs. Irani was about to come to chair that meeting, और हमने कहा कि हमने ऐसा कर दिया है। देवराज ने कहा कि शर्मा जी आप तो chaos कर रहे हैं। हम कहा सर क्या chaos हुआ? ये बच्चे हायर एजुकेशन में कहाँ जाएंगे? हम कहा अगर हायर एजुकेशन फ्लेक्सिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? Why should school education be? Now this is the national policy और ये NEP यही कह रही है बच्चा आप किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है उसके मन से। तो अब वो डांस के साथ मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, तो मैथमेटिक्स इन डांस एंड डांस इन मैथमेटिक्स पर नई चीजें आने वाली हैं भारत से। पेंटिंग एंड एग्रीकल्चर, म्यूजिक एंड एग्रीकल्चर। I was very happy to see we went for a program and there was a group of boys playing. So I asked them कि भाई करते क्या हो तुम लोग? सब यही गिटार बजाते हो, ड्रम बजाते हो? कहा कि नहीं सर, वी आर ऑल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, लेकिन हमारा म्यूजिक में शौक है। हम यही चाहते हैं कि मैनेजर्स का ग्रुप, एग्रीकल्चरिस्ट का ग्रुप, साइंटिस्ट का ग्रुप किसी और चीज में भी इंटरेस्ट रखे, कुछ और भी करे,
ये बच्चे वैसे ही निकलेंगे। जो मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे वो म्यूजिक भी साथ में कर सकते हैं और उसके लिए उनको क्रेडिट मिलेगा। कल ही मैं यहाँ की मीटिंग से निकल के गया था, हम लोग सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। आई एम अगेन फॉर्चुनेट टू बी अ मेंबर ऑफ द सिंडिकेट देयर एंड वी हैव डन इट। डिजाइन योर डिग्री, बच्चा डिजाइन कर रहा है अपनी डिग्री, हम ये पढ़ेंगे। और कल ही हम लोगों ने पास किया है कि जो एनसीसी और एनएसएस लेकर के पढ़ता है उसको 2 क्रेडिट हम उसका भी देंगे, क्यों नहीं? I wonder, I have not kept track of time. आपको रोकना पड़ेगा। नहीं, I would like to take questions, तो इसलिए हम थोड़ा समय बचाएंगे कि आपके क्वेश्चंस ले सकें। ये हमने ज़्यादा स्कूल एजुकेशन के सेक्टर से बातें की हैं, कैसे हम बच्चों को लाना चाहते हैं, कैसे उनको सिखाना चाहते हैं। आप एक रोड मैप देख सकते हैं कि सारा ज्ञान केवल किताबों में नहीं है। जो आई वोंट अगेन लाइक टू से मैं कॉलेज किया, किसने किया, लेकिन यही था, हम उड़ने देना चाहते हैं बच्चों को। दे आर मच ब्राइटर। आई ऑफन से कई बार हम अपने बेटे से बात करते हैं और उससे हम बातें पूछते हैं, क्योंकि अपने लेक्चर्स में यूज़ करते हैं। हमसे 30 साल छोटा है, वो हमसे बहुत आगे सोचता है। अभी एक इंटरव्यू हमको फेस करना पड़ा, तो मैं भी काम करके गया था। तो सर्च कमेटी ने हमसे पूछा कि शर्मा जी हम लोग के बारे में सब जानते हैं। तो हमने उनको बताया कि माई सन वेंट फॉर एन इंटरव्यू एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू दे आस्क्ड हिम, वी हैव आस्क्ड यू इनफ, डू यू वांट टू आस्क अस एनी क्वेश्चंस? So he said, he answered, I have Googled enough about you, I know all of you very well. And I did the same. कि भाई कौन लोग हमको इंटरव्यू करने वाले हैं, वो कौन है, मैं उनके बारे में पहले जान लूँ ताकि मैं उनके मन से आंसर कर सकूँ। तो शायद ये बच्चे हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, हमसे आगे सोच सकते हैं। हम यही ट्रेनिंग में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं टीचर्स को, उनको तैयार करना चाहते हैं के लिए। अभी तक का जो ट्रेनिंग था वो था 1854 के गुड्स डिस्पैच का, जिसने ये तय किया था कि हम टीचर अपॉइंट करेंगे। अरे आप कौन करेंगे वाले, और इंस्पेक्टर्स होंगे जो देखेंगे टीचर्स कैसा काम करते हैं। हमको कुछ चीज़ों के लिए बात उठानी पड़ेगी। टीचर्स का अटेंडेंस, टीचर्स का ACR, ये कॉमन हो गया है। आप 9 बजे लगाइए, 5 बजे लगाइए। मैं कई बार बोलता हूँ, पता चलता है उसी इंस्टीट्यूशन में ये था, ये बहुत बुरा हो जाता है, लेकिन ये बोलना ही पड़ेगा। टीचर्स का अटेंडेंस करके आप टीचर्स नहीं बना सकते। उनको थोड़ा समय दीजिए, उनको करने दीजिए। और वो आई ऑफन कोट दिस बुक फ्रीकोनॉमिक्स। If you have read that book, the first chapter, the sumo wrestler, the school teacher and the sumo wrestler. आप मेरा अटेंडेंस लेंगे तो हमको पता है अटेंडेंस कैसे फर्स्ट किया जाना है। आप अगर हमारा परफॉर्मेंस, मेरे बच्चों के परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमको पता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे फर्स्ट किया जा सकता है। टीचर्स ने यही किया। जब अमेरिका में ये कहा गया कि आपके बच्चे अगर अच्छा रिजल्ट नहीं किए तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ेगी, तो सभी बच्चों को 95-97% नंबर आया। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा समाज को, हमको, कि हम पर विश्वास करो भाई, हम तुम्हारे बच्चे को अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमारी टीचर आपसे एक बच्चा 2 बच्चा नहीं संभालता है, हमारी टीचर 40-50 बच्चों को संभालती है। कैसे संभालती है? थोड़ा रिस्पेक्ट तो करो, थोड़ा मानो तो उसको, कहो तो उसको मेरा बच्चा। इसकी बात युवा जी ने कहा कि हम उसी के लिए तो जीते हैं, उसी के लिए तो अपना लाइफ डेडिकेट किए हैं, तो हम पर विश्वास तो करो। लेकिन समाज का विश्वास खत्म हो गया। मैं हायर एजुकेशन पर रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा ज़्यादा। वी आर इन अ क्राइसिस सिचुएशन, आई मस्ट से। आई एम एन इन्वॉल्व पर्सन, तो मैं हर चीज़ को देखता हूँ। कहानियाँ बहुत हैं, मैं एक कहानी से ख़त्म करूँगा। मैं जाना चाहता हूँ, my teachers in my community know I'm close to the government. I sit on committees, I sit with ministers on many committees. एक टीचर ने मुझसे पूछा, एक दिन मैं कहीं था, कि सर मेरी वाइफ का कल इंटरव्यू है फलाने कॉलेज में। और फिर उन्होंने कहा, सर किसको पकड़े? इट वॉज अ शॉक ऑफ माई लाइफ। और नेक्स्ट डे मैं जब वैलिडिक्ट्री मुझे देना था और उसमें मैंने इसको नरेट कर दिया, उसने कहा सर आपने तो मेरा पूरा पानी उतार दिया। हमारा विश्वास, समाज का विश्वास हम पर से उठ गया है। लोग ये ट्रस्ट नहीं करते हैं कि अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, वाइस चांसलर हैं, तो डिजर्व करते हैं, इसलिए वहां हैं। आपके यूनिवर्सिटीज
कि वाइस चांसलर 200 किलोमीटर के बाहर के हैं क्या? आपकी यूनिवर्सिटीज में बच्चे 50 किलोमीटर के बाहर के हैं क्या? टाइम्स हायर एजुकेशन असेसमेंट का में हम बहुत विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उसको पढ़िए। ऑक्सफोर्ड हैज प्रोफेसर्स फ्रॉम टीचर्स फ्रॉम 40 यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स फ्रॉम 60 यूनिवर्सिटीज। एजुकेशन इज अबाउट ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज एंड द सर्च फॉर ट्रूथ। आप ये कैसे करेंगे ह्यूमनिज्म अगर एक ही जगह के सब लोग एक ही जगह के घेटो बनाएंगे? अपनी यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटीज बनाइए, लर्निंग सेंटर्स बनाइए, क्वेश्चंस पूछिए, और जब कुछ कोई पूछे आपसे कि सर किसको पकड़े, किसको पब्लिक करिए, सबके सामने बोलिए कि अगली बार तुम मत पूछना हमसे किसको पकड़े। ये बोलना जरूरी है, ये ऑनेस्टी कन्फेस करना जरूरी है। जिन चीजों की हम शिकायत कर रहे हैं सर, हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये बात उठनी चाहिए। हायर एजुकेशन इज अगेन एट क्रॉसरोड्स, we need to look at it. But I would end by saying something. Why is your school education in such a bad state? Most of you perhaps are from school education. Who manages the school education? Who decides about the school education? About universities, the University Grants Commission does it. एक body है, वो जैसे भी मैनिपुलेट होती हो, लेकिन एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, आउटसाइड द गवर्नमेंट है। पब्लिकली कोई भी मंत्री नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता है आई हैव डायरेक्टेड द चेयरमैन यूजीसी टू डू दिस, नो मिनिस्टर कैन अफोर्ड, शोर मचेगा। लेकिन हर मंत्री के बदलते ही स्कूल का सारा चीज क्यों बदल जाता है? आपके स्कूल्स का हेड मिनिस्टर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या सेंट्रली मैनेज्ड स्कूल्स के हेड मिनिस्टर फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। I have often asked this question, which is the body in school education which decides and which is autonomous, which is outside politics? People have told me NCERT. You are not aware. The minister happens to be the chair of the council of NCERT. उसकी इच्छा के बिना वहां एक पन्ना भी नहीं छप सकता है। तो आपने से स्कूल एजुकेशन को ही पॉलिटिक्स बना दिया। आपको याद होगा 2000 में एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, 2005 में नई सरकार, 2004 में नई सरकार आई, 2005 में करिकुलम फ्रेमवर्क ही बदल दिया। तो पहला करिकुलम पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था। छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर ने तय किया कि हम क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बच्चों को दे देंगे, वो घर ले जाएं, 7 दिन में लिख के दे दें। ये मंत्री का डिसीजन था। आई क्वेश्चन दिस मिनिस्टर ऑन टेलीविजन एंड 100% नंबर लेकर के हजारों में लाखों में बच्चे आ गए और सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज भर दिए। CUET उसी का देन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई तरीका नहीं दिखा कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कैसे बचाएं, क्योंकि ये बच्चे जो उठ के आ जा रहे हैं इनको हम कैसे रोके आने से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने CUET ले आया। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अपने स्कूल बोर्ड्स को खत्म कर दिया। आपके साइंस के बच्चे पहले ही नहीं पढ़ रहे थे स्कूल्स में, क्योंकि वो नीट की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते हैं, साइंस नहीं पढ़ते हैं स्कूल में। अब आपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को भी खत्म कर दिया। इसकी चर्चा होनी चाहिए। I will end by saying this is a brilliant document, the National Education Policy, I mean. It has great recommendations. It's a compilation of great recommendations. But nothing new has been said. It's all the collection of all the good recommendations from last perhaps 200 years. कुछ पर्सनल शेयर करेंगे जो आपको बड़ा मजा आएगा। हम लोगों ने 33 थीम पर काम शुरू किया था जब पॉलिसी बना रहे थे। 20 हायर एजुकेशन में, 13 स्कूल एजुकेशन में। ये जब कंपाइल हो गया तो हुआ कि भाई इसको अब पॉलिसी के तौर पर लिखना है। मिसेज ईरानी थी, प्रणब मुखर्जी के बड़े प्रिय एक ब्यूरोक्रेट थे सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा उससे लिखवा दो, और सुब्रमण्यन कमेटी बनी जिसका कोई अंदाज नहीं था एजुकेशन से। मेरी मुलाकात हुई, वो उनको बुलाए थे मिलने के लिए चेयरमैन एंड आईओएस, और उन्होंने यहीं से बात शुरू की, शर्मा जी मैं कभी एजुकेशन में नहीं काम किया हूँ, मैं तमाम मिनिस्ट्री में रहा हूँ, एजुकेशन में नहीं रहा, मुझे एजुकेशन की कोई समझ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की मदद से लिखूंगा। एक देश की पॉलिसी जो 142 करोड़ के देश के लिए लिख रहा है, उसको कोई अंदाज नहीं है, वो लिख रहा है।
जब डॉक्यूमेंट लिखा हम लोगों ने बहुत शोर मचाया, उसको रिजेक्ट कराया, तब सरकार को विवश होकर कहना पड़ा कि ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था। भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं, ये ड्राफ्ट है। थैंक गॉड। कस्तूरी रंगन जी आजकल लिख रहे हैं, बोल रहे हैं शिक्षा पर। उनकी भी मुलाकात हमारे टीम से हुई थी, हम थे एज एन एस चेयरमैन, तो हमने उनको भी यही कहा था कि आप जितना अच्छा सैटेलाइट्स उड़ाए, शायद मेरे बच्चों को उड़ाएंगे, मेरी आशा है। और ये 480 पेज का रिपोर्ट जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको उठाया और रखा, कहा कि ये बताओ ये 480 पेज को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, और अगर इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है तो कोठारी कमीशन कर दो, वो भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, उसके रिकमेंडेशन भी नहीं हुए हैं। उसके बाद ये 62 पेज जमा किया गया है, और ये 62 पेज राइट फूड्स डिस्पैच से लेकर के और जनार्दन रेड्डी कमेटी तक की रिपोर्ट का कंपाइलेशन है, जो सब अच्छे। जनार्दन रेड्डी कमेटी रिपोर्ट पढ़िए, 7 पेज का डॉक्यूमेंट है, 2.5 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसके 7 रिकमेंडेशन रिपीटेड है NEP 2020 में। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, डोंट थिंक इट्स अ BJP report, it's a Narendra Modi report, it's this government's report, it's a collection of all the good recommendations made by all the commissions, committees for education in India. Own it, adopt it, implement it. Implementation is the most difficult, because those agencies have again no idea. मुझे बोलना नहीं चाहिए, NCERT का डायरेक्टर, एक हिस्ट्री का प्रोफेसर जिसको करिकुलम और सिलेबस में अंतर नहीं पता है, वो बनाता है किताबें। कैसी किताबें पढ़ेगी? ये बदलना पड़ेगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है, स्कूल एजुकेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी आउटसाइड द गवर्नमेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी आउटसाइड पॉलिटिक्स। I had shared an article with Namrata ji. I hope that will be shared with you. I'll be very happy if you can read it and reflect on it. Hope you will agree with me and spread that message, voice, raise that voice for an independent school education commission. Thank you very much. अंत में मैं अपने एजेंडा के साथ थैंक यू वेरी मच। Because I am honest. अब ये इन्होंने पूछा है कि being in the office, how are you so bold? I was chairman and I often go on television debates and I take a very independent stand. मेरे सेक्रेटरी थे अनिल स्वरूप, उनका फोन आया कि शर्मा जी आप NDTV पर जा रहे हैं, इस पर डिबेट है, आप क्या स्टैंड लेंगे, आपने परमिशन लिया क्या? हम कहे नहीं, हम प्रोफेसर हैं, परमिशन नहीं लेते हैं। ये अनिल स्वरूप जी को मेरा जवाब था, मेरे मित्र हैं। हमने कहा कि हम प्रोफेसर हैं, हम परमिशंस नहीं लिया करते हैं, मेरा कोई ACR जिंदगी में नहीं लिखा है, मेरा ACR आप लिखते हैं। आज के इस डिबेट के बाद आप लिखेंगे कि कैसा था ये रिसोर्स पर्सन जिसको नम्रता जी ने बुलाया, तो मेरा ACR आप लिखते हैं। हमने कहा कि हम किसी से परमिशन नहीं यार, आप आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम माई ऑफिसर, ही टोल्ड मी। आई सेड सॉरी सर, आई एम नॉट एन ऑफिसर, आई एम अ प्रोफेसर। Oh, then I'm talking to the wrong person. 4 साल बाद अनिल स्वरूप रिटायर किए, किताब लिखा, उसके रिलीज में हमको बुलाए और उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, I wish if I get a second life, I would like to be a bureaucrat. And in my intervention I said, I wish Anil Swarup takes a rebirth and he becomes a professor. He took 35 years to open his mouth. I started speaking day 1. निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर आप नहीं रख सकते हैं, शिक्षा नहीं बदलेगी, क्योंकि रामायण के सुंदर कांड का 37वां दोहा कहता है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोलहि प्रिय भायास, राज धर्म तंतीर कर हो यही भी गहिनास। तो अगर हमसे सच नहीं सुनना चाहते हो तो देश का भविष्य ठीक नहीं है। हम दोनों तरफ से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन सरकार इम्प्लीमेंट ठीक से करे, ये अपेक्षा होगी। माय टेस्ट टाइम। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, जीवन का वास्तविक साथी उसकी सच्ची मित्रता स्वयं तुम्हारी सोच है। The future depends on what we do in the present.
Dr. Chandra Bhushan Sharma, it is truly an honor to have you with us today. Your call for a more inclusive and equitable education system has struck a chord with all of us. Your insightful analysis of the current education scenario and your projections for the future have given us a lot to think. I would like Dr. Ashish Gadekar, Registrar of MGM University, to please felicitate Dr. Chandra Bhushan Sharma. We will have to take questions because I have many and I don't want to leave them unanswered. But we can do that quickly, sir. Yeah. So, the first question that I have is from none other than Dr. Vijayan Ravi. So she says, salutations for all the revelations that you are doing and the revolutions that you're doing. Major problem is not the kids. Problem is parents. The immense pressure on the kids to compete and excel makes these kids even commit suicide. For example, the quota incidents. So the government has to bring the parents into the picture and give them some guidance also. What are you or the government doing in this direction? I was on that NDTV debate when the child committed suicide in IIT Bombay last year, or maybe year and a half back. I was of the opinion, day one, देखिए आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, जैसे ही वो सुसाइड किया बच्चा, रामदास अठा वाले गेट पर पहुंच गए और मैं डायरेक्टर को सस्पेंड किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए. जो मेरा स्टैंड था वो ये कि आपको पता ही नहीं है कि डायरेक्टर क्या क्या कर चुके हैं. डायरेक्टर ने एक सर्वे कराया था कि मेरे बच्चे कैसे रह रहे हैं. मेरा बच्चा IIT बॉम्बे में पढ़ा था, उससे भी हमने पूछा, वो कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है. वो बच्चा क्यों सुसाइड किया था उसके डायरी से पता चला. जो सबसे ज़्यादा हिट किया था उस बच्चे को वो ये कि उसका सबसे प्रिय दोस्त ये उसको कहता था, कह रहे तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम तो सरकारी दामाद हो, तुमको तो नौकरी मिलेगी. दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, देव सबसे क्लोज थे. जो हमारा सबसे प्रिय जन उसको ऐसा कहता है, वो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है. इस बच्चे की ट्रेनिंग नहीं हुई थी. हम समाज कौन डिनाई करेगा कि जो पिछड़ गया है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है, उसको दिया जाए. लेकिन हम उसको जब पॉलिटिक्स बनाते हैं तो ये यूथ नहीं समझता है. उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, वो इनबिल्ट होना चाहिए. वो कहानियां आप निकाल दिए हैं जो कृष्ण सुदामा की है, सुनाइए फिर से बच्चों को कि अगर कोई मित्र बड़ा हो भी जाए तो छोटे को मत भूलना, वो तुम्हारे भरोसे है, उसको लेके चलना है. मुझे लगता है कि दोष समाज में है और हमारे शिक्षा में भी थोड़ा है, उसको बदलना चाहिए. और जैसा कि कल बहन शशिकला जी बोली थी, आने वाली किताबों को जरूर देखिए, हम लोगों ने इसका ध्यान रखा है. Mr. Shyam Singh is asking, how do you prepare to reconcile the various curriculums at school level and integrate it with specializations at the higher studies level? See, this whole concept of a specialization, leave it to the child. What we are doing is, we are leaving it to the children to decide and find out what are their interests. तो कोई बच्चा, हम इतने समय नहीं था, कारपेंट्री में इंटरेस्टेड है, फैब्रिक डिजाइन में इंटरेस्टेड है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड है, उसको करने दो. जब वो आगे जाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पर हमने कहा है हर कॉलेज को हम ऑटोनॉमी देंगे, हर कॉलेज अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज से करिकुलम तय करेगा. हर विषय के लिए नहीं होगा तो स्टूडेंट्स अपना क्लब बनाएंगे, क्लब के माध्यम से वो काम करेंगे, फिर वो सेंटर में कन्वर्ट होगा, सेंटर से डिपार्टमेंट में होगा. तो हम ओनर्स नहीं ले रहे हैं कि हम पहले टीचर तैयार करेंगे, पहले डिपार्टमेंट खोलेंगे, पहले बजट देंगे, फिर करेंगे. इसलिए हमने रिफर किया है डिजाइन योर करिकुलम ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी. ये
रोल आउट हो चुका है, स्टूडेंट्स कर चुके हैं और इस पर काम हो रहा है। तो शुरुआत बचपन से कर रहे हैं, स्कूल में चेंज कर रहे हैं और कॉलेज लेवल पर, हायर लेवल पर हम लोगों ने ये सजेस्ट किया है जो इंप्लीमेंट हो रहा है बाय द नेम 4-year degree program. Again I will say, this was done by Delhi University in 2012. Unfortunately, when there was a change in government, because the vice chancellor was somebody which the government thought was not on their side, उसको फोर्स करके विड्रॉ कराए, अब ये नेशनल पॉलिसी है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा चेंज हो रहा है और धीरे धीरे ये पूरे इकोसिस्टम में आएगा एजुकेशन के, कि जो बच्चा जिसमें अच्छा है वही करे और उसमें एक्सेल करे। इतना स्कोप है, इमेंस स्कोप है। सर ये प्रश्न पूछ रही हैं डॉक्टर शाजिया शेख। तो उनका ये कहना है कि माई डॉटर इन ग्रेड 3 हैज़ won many prizes in her school but has not been felicitated even once. There is no photograph or personal acknowledgement. When we celebrate her wins at home, she says she doesn't feel like she's a winner. What would you say about this process which happens in her school? Look, again we have created a culture of first, second, third, winner, loser. ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। हम लोग इसी में तो जो स्किल एरियाज थे कोई बच्चा लेता नहीं था, क्योंकि हम दो ही चीज समाज में था, 12वीं पास करके अगर IIT गए तब तो ठीक हो, और नहीं ग्रेजुएशन करके IAS बने, और नहीं तो तुम किसी काम के इस देश में नहीं हो। दो ही लोग, सबसे बेकार तो हम टीचर्स हैं, जिनको कुछ नहीं मिला तो 7th चॉइस में हम टीचर्स बने। ये बदलेगा, इसी को बदलने का प्रयास है। और देखिए कोई भी देश एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन वी आर कॉन्फिडेंट कि हम जो पूरा सिस्टम लेके आ रहे हैं, कोई बच्चा 2 मिनट को मानो कि वो, हमने जो बैगलेस अटैचमेंट कहा है 2 दिन का, वो जाता है और एक टेलर को देखता है कपड़ा डिजाइन करते, एक कारपेंटर को देखता है फर्नीचर बनाते, उसको बड़ा मजा आता है। कहते 3री 4थी क्लास में जाकर के उसको हम ले जाते हैं उसके लैब में, वहां वो बनाना शुरू करता है। जब वो ग्रेजुएशन में जाता है, जिस डिजाइन और डिग्री की बात किए हैं, वो कहता है हम एक करिकुलम बनाएंगे जिसमें कि लकड़ी के फर्नीचर से बना करके मार्केटिंग बना करने तक और एक्सपोर्ट करने का सारा चीज इंटीग्रेटेड होगा, और यही मेरा सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने NSS और NCC को कल 2 क्रेडिट के उसमें अप्रूव किया है, ये क्यों नहीं हो सकता है? वो बच्चा कहता है मैं ग्रेजुएट विद कारपेंट्री। अभी आपने कर ही दिया है कि कारपेंट्री, अरे कुछ और नहीं मिला था क्या? नहीं कुछ हो पाया। अब वो गर्व से कहेगा कि नो आई डिजाइन फर्नीचर, आई एम अ फर्नीचर डिजाइनर, तब वो माना जाएगा। रोहिणी कदम जी कह रही हैं, सर भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन माता पिता है। अपनी मातृभाषा जो है उसमें सभी आसानी से अभिव्यक्ति कर पाते हैं, लेकिन आज अंग्रेजी के प्रभाव के कारण मुझे लगता है हमारी मातृभाषा कहीं लुप्त होती जा रही है। पर नई शिक्षा नीति इसके लिए क्या बदलाव करेगी? और यह प्रश्न भी मैं आपसे इसलिए पूछ पा रही हूँ क्योंकि आपने हिंदी में हमसे संवाद किया। गुड, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से हिंदी निकलती है। मैं अपने मन की बात आपसे बता सकता हूँ। अंग्रेजी मैं बोल लेता हूँ, डिग्री है उसमें, लेकिन वो शिफ्ट हो ही जाता है। देखिए ऐसा है, 1835 में जब मैकॉले ने अंग्रेजी लगाया था तो बहुत कम लोगों को अंग्रेजी आती थी, लेकिन आज हम उसी को पढ़ा लिखा मानते हैं। मैं, नम्रता जी ने क्वेश्चन पूछ दिया, मैं चांसलर्स नॉमिनी, गवर्नर्स नॉमिनी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हूँ, तो मैं अपने विषय के बाहर के भी विषयों में सिलेक्शन कमेटी में बैठता हूँ। तो जब फिजिक्स के सिलेक्शन में बैठते हैं, या कई बार किया है हमने, तो हम अंत में जो सबसे अच्छी अंग्रेजी बोला उसका लिस्ट बना लेते हैं, और इसके पहले की एक्सपर्ट्स बोले, मैं बोलूंगा कि ये 2 बेस्ट थे ना जो सबसे अच्छी अंग्रेजी बोले। तो हम सिलेक्शन केवल अंग्रेजी का कर रहे हैं, विषयों का नहीं कर रहे हैं, ज्ञान का नहीं कर रहे हैं। ये करने में हमको इतने सेंचुरी लगे हैं, एक दिन में चेंज कैसे खोज रहे हो? 20 साल तो दो। IAS, I can tell you we had made that change, that difference 82 कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी IAS की परीक्षा देगा। आई हैव सीन IAS ऑफिसर्स जो अंग्रेजी के नोट गलत लिखते हैं नोट शीट पर, और गर्व से लिखते हैं क्योंकि मैं IAS हूँ। समय आएगा जब बच्चा कहेगा कि भैया मुझको अंग्रेजी नहीं आती है, मैं मराठी में लिखूंगा, और मराठी मेरी भाषा है, लेकिन नॉलेज की बात
नई बात करो, कोई इनोवेशन की बात करो, मैं मराठी में इनोवेशन बताऊंगा, तो इसमें समय लगेगा लेकिन ये होगा। ये पॉलिसी बिल्कुल चेंज करेगी भारत को, इसीलिए शुरू किया था हमने करने से। ये एक दर्शन है, ये पॉलिसी नहीं है। सर, अगला प्रश्न मंजूश्री चांडक पूछ रही है। ये कह रही है कि आज चूंकि न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, माता पिता दोनों वर्किंग हैं, बच्चों को मेड के साथ छोड़कर हम काम पर चले जाते हैं, आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल की जगह हम स्कूल में ही क्यों ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कुछ समय दे सके और इसकी शिक्षा दे सके, ये एक प्रश्न है। दूसरा, वो कह रही है कि पहले की तरह जो शिक्षा दी जाती थी इन होम साइंस, आज वो क्यों नहीं दी जा रही? नहीं, एक तो मैं बड़ा विरोध में हूँ इसके। अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पढ़ें रिपोर्ट, तो मुझको शर्म आती है। उस रिपोर्ट में एक लाइन लिखा गया है कि लड़कियों को कंपलसरी होम साइंस कराया जाएगा। क्यों? लड़की क्यों नहीं? ये लिखा नहीं जाना था, पहली बात। सैनिक स्कूल खोले गए थे 1961 में, लड़कियों का दाखिला नहीं था। क्यों? आधी इजराइल की आर्मी नेवी वर्कफोर्स वुमेन का है। अब जाके हमने सैनिक स्कूल में लड़कियों को दाखिला दिया। And I will tell you, I have trained every teacher of Sainik school in the last 2 years, and 21 we admitted girls, 23 when I was meeting a batch. I said कि लड़कियां कर कैसी रही हैं? And do you know what was the answer? Sir, they are posing a very tough challenge for the boys. They are so focused. हमारे सोच की कमी थी। I don't think I should say more on women empowerment. Dunga ji has said already. अर्धनारीश्वर की कल्पना हमने किया है, हम दुनिया को उसकी कल्पना दिए हैं। जब राम को श्रीलंका पर चढ़ाई करनी थी, जाना था, तो बिना सीता के हो ही नहीं सकता था पूजा, तो सीता की कल्पना की गई और तब पूजा हुई। भारत में पुरुषों की कल्पना बिना पत्नी के नहीं है। दुर्गा जी ने सही कहा है कि ऐसे भी ये प्रैक्टिकल है कि बिना पत्नी के कुछ बोलिए मत, नहीं तो झंझट में पड़िएगा। मेरी पत्नी भी बैठी है यहाँ पर, लेकिन ये कोई चमचागिरी नहीं है, ये सच। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी कमियां रही पॉलिसीज में, इम्प्लीमेंटेशन में, उसको बड़े ध्यान से माइन्यूटली हमने देखा है। हम मैक्रो चेंज से माइक्रो चेंज तक कर रहे हैं। अब इसीलिए हमने ये सैनिक स्कूल का उदाहरण दिया। 37 सैनिक स्कूल केवल हैं, लेकिन वो देश का सोच समझाता है। ये देश ये समझा कि नहीं, लड़कियां कैसे आर्मी में चली जाएंगी, लड़कियां कैसे नेवी कर लेंगी। अब ये सोच बदल रहा है, सही में बदल रहा है। और इसको पॉलिटिकल मत समझिए, पॉलिटिकल नहीं समझिए। ये हम लोगों ने सजेस्ट किया, गवर्नमेंट ने केवल कहा यस कर दो, आपकी ऐसी समझ है कर दीजिए। पता नहीं पहले क्यों नहीं। सही, मैं क्विकली कहती हूँ। ये मीता कपूर हैं, ये कह रही हैं कि क्या प्री प्राइमरी के लिए भी टेक्स्ट बुक्स आएंगी, और प्री प्राइमरी सीबीएसई स्कूल से, आई थिंक शी मीन्स टू से कि 1st to 10th या 1st to 12th, कैसे उसका कनेक्शन बनेगा? देखिए, टेक्स्ट बुक नहीं आएंगी, इसीलिए हमने कहा कि हमने टॉयथॉन कराया है, एंड द करिकुलम इज बीइंग बिल्ट अराउंड दीज टॉयज एंड गेम्स। बहुत बढ़िया। आई वाज वेरी हैप्पी। आई विल कोट दिस एग्जांपल अगेन एंड अगेन, डुगा जी, ऑफ दैट स्नेक एंड लैडर। हमारे जो ऐसे खिलौने थे जो हमारा कैरेक्टर डेवलप करते थे, उसको हमने निकाल दिया है। हमारी पर्सनैलिटी उसी से है कि हमको जब सांप काट के नीचे कर देता है, जब लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई स्टैब करता है, बैक स्टैबिंग करता है, तो हम उतना नहीं घबराते कि तो लाइफ का पार्ट है, सांप सीढ़ी खेले हैं, उसको हटाया क्यों? हम उसको वापस लाना चाहते हैं ताकि कैरेक्टर वैसा बने। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। सर, आप ये चेंज कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में देखेंगे, मैं जरूर इसको कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये भी आए। तो हमारे कल्चर में ऐसे खिलौने हैं, ऐसी कहानियां हैं जिसको कि हमने निकाला था। समय लगेगा। अगेन उन सबको हम रीइंस्टेट करने जा रहे हैं। और एक फैक्ट और शेयर करें, दुनिया का सबसे अमीर देश भारत था राइट अप टू 18th सेंचुरी। अभी ओईसीडी ने एक स्टडी कराया है 2 साल पहले, द वर्ल्ड इकोनॉमीज, एंड दिस मेडिसिन के चेयरमैनशिप पे ये स्टडी हुआ, और उसने भी कहा है, क्योंकि ओईसीडी वांटेड टू फाइंड आउट कि भारत और चाइना कहते हैं कि हम सबसे अमीर थे, तो कैसे थे? ओईसीडी रिपोर्ट है, एंड विच ऑफन आई से बिकॉज आई हैव वेस्टर्न ट्रेन, मुझको वहां लोग बोला करते थे, यू आर अ हिंदू फ्रॉम इंडिया, आर यू टेकिंग दिस स्टैंड बिकॉज यू आर अ हिंदू? I will say this report has been written by a white Christian European and not by an Indian BJP person. वो कहता है कि भारत सबसे अमीरी
था, 43%, 43% शेयर हमारा ग्लोबल ट्रेड में था, क्योंकि हर क्षेत्र में हम काम करते थे, हर नॉलेज एरिया में हमारा काम था, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हम जो पॉलिसी लगाते गए, ये नहीं, उनको नहीं, इनको रिजर्वेशन, इनको अंदर, इनको बाहर, उससे खराब हुआ है। सबको उड़ने दो, सबको सोचने दो, सबको करने दो, तभी भारत भारत बनेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो चेंजेस लाए हैं वो असर डालेंगे। सर, ये अगला प्रश्न है, मैं इसका एक पार्ट बी लेती हूँ। वो कह रहे हैं, काइंडली शेयर सम प्रोविजंस ऑफ द NEP फ्रॉम प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। Right, very good question. Look, every time you will hear कि ये प्राइवेट वाले जो है ना, मतलब हम लोग पूरे डिस्कोर्स में, एजुकेशनल डिस्कोर्स में प्राइवेट एजुकेशन को प्लंडरर मान लिए हैं। पढ़िए, आप पहली बार इस पॉलिसी में पढ़ेंगे, हम PPP की बात कर रहे हैं। स्कूल सेक्टर से आपको एग्जाम्पल दें, हमने कहा है स्कूल क्लस्टर बनेगा, और कहा है स्कूल क्लस्टर का लीडर एक प्राइवेट स्कूल हो सकता है। हमने कहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी उन सारे बॉडीज पर बैठने का अधिकार होगा, और बैठेंगे और तय करेंगे पॉलिसीज जिसमें कि पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। आर यू अवेयर 75% ऑफ हायर एजुकेशन इज इन प्राइवेट हैंड एंड 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर इन प्राइवेट सेक्टर। ये भारतीय बच्चे हैं कि नहीं है? मुझे याद है प्रकाश जावड़ेकर जी बड़ा बढ़िया है, मैं एक पॉलिसी लेके गया था, मैं चेंज करना चाह रहा था। इनफैक्ट DLED जो हमने कराया, आप में से कुछ को पता होगा कि इट वाज माय ग्रेट फॉर्चून कि सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया का मेरे हाथ से हुआ है। 12.5 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग एक साथ किया था, और हम उसको सब्सिडाइज 10,500 में कराए थे पर टीचर। तो मिनिस्ट्री से लोगों ने कहा कि सर इसमें इतना खर्चा आएगा, ये होगा, ये। प्रकाश जावड़ेकर जी का बड़ा अच्छा एक आंसर था, ये जो टीचर्स हैं ये पाकिस्तानी हैं क्या? ये भारतीय नहीं है? तो चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, चाहे पब्लिक में पढ़ा रहे हैं, चाहे प्राइवेट में या पब्लिक में, करो देश के खर्च पर ट्रेनिंग इनका क्यों नहीं करोगे? स्कूल देश का है ना, तो ये प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट सेक्टर देश का है ना। आप बढ़िया रूल्स बनाइए, रेगुलेशन बनाइए। आप पहले ही डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू करते हैं, और 2/3 ऑफ योर चिल्ड्रन आर देयर, ये नहीं चलेगा। और पॉलिसी दोनों सेक्टर में, स्कूल सेक्टर में और हायर एजुकेशन में, दोनों में कह रही है हम बराबरी से दोनों को हिस्सेदारी देंगे, बराबरी से बैठने का मौका देंगे, बराबरी से सहमत हो। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का चेयरपर्सन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है GD शर्मा। तो अब वो बदला है और बदल रहा है ना। आई बिलीव प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी ये बात बोली है एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि PPP मॉडल एजुकेशन में करो। और जो हमने एक बात किया अभी सैनिक स्कूल की, 37 से 100 बनाने की बात थी कि हम बाकियों को PPP मॉडल में बनाएंगे। हालांकि 2-3 दिनों से मैं अखबार में कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, विच आई डोंट बिलीव, बट ये PPP मॉडल में बनेगा सैनिक स्कूल भी। तो PPP मॉडल इन एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, सरकार साथ रहेगी, लेकिन मैनेज इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट एजेंसीज करेंगे या प्राइवेट बॉडीज करेंगे। सो ये अगला प्रश्न है, कह रहे हैं सर, आई रिसेंटली हर्ड अ फादर से, इसे सोचने की क्या जरूरत है, जितना कहा है उतना ही करना चाहिए। बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक, डोंट यू थिंक वी नीड टू शिफ्ट दिस इफ पेरेंट्स अलाउ चिल्ड्रन टू थिंक एंड आस्क क्वेश्चंस एट होम? A large number of parents have now got educated to give that freedom to children, but we need to do that education of the society and families. Large number of schools now have parent counseling. उनको ये बातें समझा रहे हैं हम स्कूल सेक्टर में। तो हमको लगता है कि पेरेंट्स का एजुकेशन, बिकॉज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर फर्स्ट जनरेशन, और उनके एस्पिरेशन वही है। मैं एक स्कूल को मदद करता हूँ, एक है मेरे मित्र जो वहाँ चलाते हैं, मैं सारी चीज़ों उनको मदद करता हूँ। वो बारी बारी से इंसिस्ट करता है कि सर सारे पेरेंट्स मांगते हैं कि टाई क्यों नहीं लगा रहे हैं, और मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं, टाई बिल्कुल नहीं पहनाएंगे, ये अंग्रेजियत की निशानी है, टाई नहीं करो। नहीं सर, सब गांव वाले बोलते हैं कि टाई अंग्रेजी। मैं उसको रेसिस्ट करता, तो रेसिस्ट करना होगा, बदलना होगा। जब ये जनरेशन निकलेगा और परफॉर्म कर पाएगा, तब लोग सोच बदलेंगे। इसलिए थोड़ा शुरू में तो मुश्किल होता है, बाद में ठीक होगा।
सही अगला प्रश्न डॉक्टर सांधली ने पूछा है, मदर टंग से रिलेटेड है. तो सांधली जी अगर आप और कुछ पूछना चाहें तो हम लंच ब्रेक में भी पूछ सकते हैं. अब आई जस्ट वांट टू टेक अ ऑडियंस वोट कि शुड वी ब्रेक फॉर लंच or would we do a session on Nayi Talim and then break for lunch? So I just want a show of hands as to what is your preference. So all those who want that we should break for lunch now, please raise your hands. All right, so we are announcing the lunch break. We will take a half an hour lunch break today. We will make it really quick and we will get back into the hall because we're having very interesting power pack sessions and we don't want to miss the presence of these outstanding speakers that we have with us today. Thank you so much. Thank you so much and sorry Thank you, for encroaching upon the time. Thank you.